Hello everyone, this is CA Gupta and in this video we are going to discuss the chapter number 3 of your Strategic Cost and Performance Management SPOM set B, which is Lean System and Innovation. So in this chapter we are majorly going to focus upon the red highlighted topics which are already in the index given to you all, and also we are going to take an overview of whole of the chapter in a quick manner so that it is easy for all of you guys to decipher the concept or something related to the chapter or concept in the exam. So before starting this overview, uh, I want to show you the chapter and how it is framed. So this is the chapter. Okay, this is the chapter number 3, Lean System and Innovation. So what all is there in the chapter? So as we can see from this chart, that there are two bifurcations of lean system and innovation. One is lean system and the second one is innovation. In the lean system, we are going to read about just in time, which is JIT, which means just in time production or purchase. So it means it is a pull system of inventory rather than a push system of inventory. If you've watched my earlier videos, I've also discussed about the push system and pull system. I think in chapter number 5 revision. So what is pull system and push system? In under push system of inventory management or production, the entity, the production house anticipates the demand and then introduce those products in the market, produce those products in the market and keep them in stock. So let's say if the entity anticipates the demand to be 100, so they'll produce 100 products. Okay, and then keep them in the stock, and as and when the customers will want to purchase, they can buy those. Now, what is pull system of inventory and how is it different from push system? So, pull system of inventory is simply based upon the nature, as long as the orders will come from the customer, the entity will produce the product. So, let's say customer has punched in 10 orders. So, the entity will produce only those 10 orders. Okay. So, they are not going to stock their products. They're not going to themselves anticipate the demand and then produce the products and keep them in the stock. So basically, they'll analyze how the orders are coming, prepare as per the orders, and then sell the products. So this is just in time inventory, just in time. मतलब जैसे ही order आता है वैसे ही हम production करेंगे, just in time. Then we have Kaizen costing. So what is Kaizen costing? Kaizen is basically small improvements make big change. So as long as the entity is improving little by little, small by small, it is going in the longer frame of time, it will improve in a larger premises, okay, in a larger conference. So this is what Kaizen costing is. There are some concepts and principles of Kaizen costing as well. Then we have 5S. This is the most interesting concept in this chapter. What is 5S? 5S is basically uh, a technique through which we can sort, arrange, and you know uh, the workspace or your office space or the production flow. Anything can be arranged, sorted, cleaned through these 5S. So we are going to focus on these 5S in this chapter as well. Then we have total productive maintenance and total quality management. So total quality management is already discussed. We are going to discuss total productive management, maintenance, and how it is different from total quality. Okay, then we have cellular manufacturing. It is somewhat also discussed earlier, but we'll also look at the forms of cellular manufacturing in this overview chapter. Then we have Six Sigma. Six Sigma is also related to reduction of defects in the product and everything around that. And Six Sigma has two components, DMAIC and DMADB. Okay, we are also going to look at design maintenance. Okay, we are going to look at it also. And then we have innovation, we have process innovation concept. So this is the major portion on which you have to focus. So what you have to focus on is JIT, 5S, total productive maintenance, Six Sigma के अंदर DMAIC and DMATV. Okay, these are the major important. Kaizen costing, you just read it, you'll know what Kaizen costing is. Okay, so this is what we are going to discuss in this chapter. So let's
further. Okay, so let's move further. So lean system. As I say, lean system means arranging the production in such a manner that the wastes are reduced without compromising the quality. Okay, so this is what lean system means. You can read the definition from here. So what are the types of wastes that the clean system will reduce? So there are 7 wastes which are classified by Taichi Ono. So the lean system was actually invented, or you can say discovered, by Taichi Ono, who was an engineer in the Toyota production system. Toyota. Okay, so the company that makes cars in Japan, Toyota, was this person, Taichi Uno, was the originator of this lean system, JIT, these different kinds of processes or different kinds of management techniques. So he classified 7 wastes which can be reduced by applying lean system. These wastes are overproduction, okay, producing ahead of demand by just anticipating the demand. And when you overproduce, you are causing a waste, right? Inventory. Since you're stocking up material, you are having inventory which is more than what is required for the customers. Is that is also a waste. Then waiting time. So in a production line, if you imagine a production line, the parts of products move in a sequence or in a line, right? So when from one point in a line, it travels to the another point. So the difference of time in both these points is called waiting time. So if this waiting time is higher, it is a waste because the production is actually stopping at that point of time. Production is stuck at that point of time. You cannot produce ahead because you have to wait for a bit of time. So as much as this waiting time is lesser, it is more profitable for the companies. Then we have motion. So how much the people move while producing, how much on the factory floor the workers have to move to bring equipments or operate the machineries. So that's the motion. So motion जितना कम उतना बेटर रहेगा. वेटिंग टाइम जितना कम, मोशन जितना कम, इन्वेंट्री जितनी कम, ओवर प्रोडक्शन ना हो, बेस्ट है. ट्रांसपोर्टेशन उन चीजों का विच आर नॉट एक्चुअली रिक्वायर्ड टू ट्रांसपोर्ट. ऐसी चीजें जो वहां पे हो सकती थी बट स्टिल हम उनको ट्रांसपोर्ट कर रहे हैं. वी हैव डिफेक्ट्स. डिफेक्ट इज व्हाट? आप एक बारी में चीज को अच्छा नहीं बना रहे हो. यू आर नॉट प्रोड्यूसिंग द थिंग in the right way the first time. So this is hampering with your regular work because you have to correct the defects, and if the defects can't be corrected, you have to reproduce the whole batch. Then we have overprocessing. Overprocessing means there are many non-value added activities which are involved in the processing. Okay, so this also hampers the lean system principles. Okay, so lean system follows a single piece flow system where there's zero waiting time, zero inventory, full processing, continuous flow of production, continuous finding ways to reducing process time. Process time जितना कम उतना lean system आपका ज्यादा work कर रहा है. Then they have their benefits. Okay, issues addressed by lean management. You can mark them or read that. Okay. Right. So this is lean system. Then we have GIT purchase, GIT production, GIT support. So as I told you earlier, what is GIT production, GIT full system of production and purchase. So as I discussed about production, purchase is also the same. As soon as the demand comes, we'll purchase the raw material from the suppliers. So this there are certain aspects which need to be taken care of in the GIT system. Since GIT is a very big concept in here, I'm not going to discuss it in detail, but I have just told you what GIT purchase system and GIT production system is. हमने ये चीज तो डिस्कस कर ली है ना, GIT है क्या, आपको उतना ही बेनिफिट आएगा. बाकी अगर कोई क्वेश्चन आता है उसके बेनिफिट्स बताओ या उसके कोई कैरेक्टरिस्टिक्स बताओ, उसके कोई एक्शन प्लान्स बताओ, यू कैन वेल रीड फ्रॉम दी कॉन्सेप्ट इंडेक्स जो हमने दिया था. आप वहां से देख सकते हो कि वो क्या चीज पूछ रहा है. प्रोज एंड कॉन्स, ओके, विल राइट द प्रोज एंड कॉन्स. सिस्टम फीचर्स, फीचर्स पूछ रहा है, विल राइट द फीचर्स. क्या प्री रिक्विजिट्स है, विल राइट द प्री रिक्विजिट्स. ओके, क्या जेआईटी प्रैक्टिसेस हैं, विल राइट अबाउट द प्रैक्टिसेस. तो आपको पता है जेआईटी क्या होता है. आप जैसे जैसे डिमांड आएगी यू प्रोड्यूस. ओके, आप पहले से प्रोड्यूस करके नहीं बैठोगे. सो दिस इज व्हाट जेआईटी इज, एंड दिस इज अ पार्ट ऑफ लीन सिस्टम. देन मुझे कम्स
Kaizen costing. So Kaizen costing is already discussed. Kaizen costing is basically small improvements are made in the process which result in a greater impact in a longer time frame. So as we can see from this chart here, okay, this is cost per vehicle in the on the horizontal on the vertical axis, and on the horizontal axis we have time. Okay, एक्चुअल परफॉर्मेंस क्या था यहाँ। ओके, सो अब आप देख रहे हो कि यहाँ पे करंट ईयर का कॉस्ट है। यहाँ पे मेरा ये देखो, ये मेरा एक्चुअल परफॉर्मेंस एट द एंड ऑफ द ईयर, यहाँ पे ये मेजर हो रहा है कॉस्ट पर व्हीकल। यहाँ पे मेरा करंट ईयर का कॉस्ट बेस है, मींस मेरी करंट कॉस्ट इतनी चल रही है, राइट। मैंने इंप्रूवमेंट्स करे, ओके। ये जो आपको लाइन दिख रही है, दिस लाइन, दिस इज व्हाट, अगर मैं एक्चुअल कॉस्ट करते तो मेरी कॉस्ट यहाँ पे होती, बट ड्यू टू हमने कुछ काइजन करा, राइट, मेरा कॉस्ट बेस यहाँ पे नीचे आ गया। सो एक्चुअल परफॉर्मेंस ऑफ द करंट ईयर, मेरा कॉस्ट बेस कम हो गया। काइजन गोल, कॉस्ट रिडक्शन अमाउंट, मेरी कॉस्ट अगर कुछ नहीं करते तो ये रहती, राइट। मेरी अगर हम कॉस्ट में कोई भी इंप्रूवमेंट नहीं करते, we wouldn't have done any improvements in the cost, so the cost base would have remained constant. This would have been the cost. But since we applied Kaizen costing, we applied small improvements, the cost has reduced. So the cost base of the next year is lower than the cost base of the current year. This is what shows actual performance, right? And this difference is Kaizen goal, cost reduction amount. So let's say your cost was about um, 10,000, right? Suppose it was 10,000. Now you have taken a goal that we want to reduce it by 4,000. Suppose 4,000. So this area is 4,000 area. So this is the Kaizen goal, that we are going to reduce the cost by 4,000. So the Kaizen goal is 4,000 and the reduced cost is this one. So actual cost reduction achieved is the total of this. Okay, so this is a complicated uh, graphical representation of Kaizen costing. You don't have to learn about this graph. You just have to know what Kaizen costing is. So this is the Kaizen costing process. You have to establish a cost reduction goal. आपको पहले कितना रिड्यूस करनी है कॉस्ट, वो वाला कॉस्ट टारगेट आपको सेट करना पड़ेगा। दिस इज व्हाट एस्टेब्लिशमेंट। देन आप गैप आइडेंटिफाई करोगे कि मेरा एक्चुअल में गैप क्या है, कि आज मेरी कॉस्ट कितनी है, what is the actual current cost and on what cost I have to go. So gap आपको निकालना पड़ेगा। Then आप उसके बेसिस पर प्लान बनाओगे। आपको लगेगा you know what are the features that can be changed in the product. मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस में कुछ चेंज करा जा सकता है क्या, या कोई टीम की एक्टिविटी। काइजन टीम इज बेसिकली योर वर्क टीम, उसकी उस टीम के बेसिस के परफॉर्मेंस में कोई चेंज करा जा सकता है क्या। दिस इज व्हाट काइजन कॉस्टिंग। Now, how Kaizen costing is different from standard costing? You can well read it here. Standard costing is basically a cost control technique. Kaizen is a cost reduction technique. We are reducing the cost. In standard costing, we set standards, and if the standards are not met, we evaluate that difference. We don't change the standards at the time at all the times, right? But in Kaizen costing, we are reducing the standards day by day, moment by moment, month by month. Every time we are reducing the standards. Okay. So this is the Kaizen costing principles. You can mark these. आप अपनी बुक में मार्क कर लो, मे बी एग्जाम में अगर पूछे तो आप लिख कर आ सकते हो, राइट। दिस इज अबाउट Kaizen costing. Okay, now we have 5S. So now what are these 5S? So this 5S is a technique developed by the Japanese. So the tribute to this chapter goes to the Japanese people, because ये सारे techniques Japanese people ने दी हैं, ठीक है। उनका डिसिप्लिन, उनका वे ऑफ डूइंग वर्क इज वेरी डिफरेंट, इज वेरी फोकस्ड। सो अब ये 5S क्या चीज है? सो दिस 5S, इट हैज टू variations in Japanese and that English translation. So ये वर्ड्स जापानीज में भी मिलेंगे आपको, इंग्लिश ट्रांसलेशन में मिलेंगे। हम इंग्लिश ट्रांसलेशन में करते हैं सो दैट हमारे लिए इजी रहेगा। सो देयर 5S, okay, and ये सीरीज में ही चलना चाहिए आपके 5S. They have to be in a sequence, in the same sequence. The first one is sort. You have to sort the material, sort your production flow, sort your area. Okay, what is needed and what is not needed. So there are some categories not needed at all. If there is some material which is not needed, like चाहिए ही नहीं हमें ये material, ये कुछ चीजें चाहिए ही नहीं। अभी चाहिए but अभी नहीं चाहिए। Needed but not now. Needed but not चाहिए but यहाँ नहीं चाहिए, दूसरी जगह पर चाहिए। Needed but not here.
नीडेड बट नॉट इन सो मच क्वांटिटी। अगर लेट्स से सपोज कोई मटेरियल हमें 10 क्वांटिटी में चाहिए बट हमारे पास 50 क्वांटिटीज में पड़ा हुआ है, तो 40 क्वांटिटीज तो वेस्ट है ना, यहाँ पे हमारी एक्स्ट्रा कॉस्ट लगेगी। तो हमें चाहिए बट इतनी ज्यादा क्वांटिटी में नहीं चाहिए, कम क्वांटिटी में चाहिए। राइट। नाउ अब मटेरियल को क्लासिफाई करने के लिए देयर आर फर्दर क्वेश्चन, व्हाट इज रिक्वायर्ड, हाउ मच इज रिक्वायर्ड, कब रिक्वायर्ड होगा, कहाँ रिक्वायर्ड होगा, सो दीज आर थिंग्स। देन देयर आर सम विजुअल एडेड sorting as well, you can read about it. Now, what is set in order? Now, once you have sort the materials, now you will set in order the materials. ये कौन सी चीज कहाँ पे रखनी है? Okay. Systematic arrangement होगा चीजों में. There will be systematic arrangement. Okay. There is a place for everything and everything in its place. So, how to implement the systematic arrangement? First of all, you have to analyze the status of the things. चीजें क्या क्या है वो हमने sort में कर लिया. Then you'll decide which thing belongs where. कौन सी चीज कहाँ बिलोंग करती है, आप उसको उस जगह पर जाके रखाओ। ओके। कैसे रखना है ये भी आप डिसाइड करो कि इसको ऊपर रखना है, इसको नीचे रखना है, राइट। इसको आगे रखना है, इस चीज को पीछे रखना है, बिकॉज उसके यूसेज के फ्रीक्वेंसी पे आप डिसाइड करोगे कि चीज ऊपर रखनी चाहिए बिकॉज ये क्विकली एक्सेसिबल होगी, ये चीज आगे रखनी चाहिए बिकॉज दिस कैन बी क्विकली एक्सेसिबल। कितने स्पेसिंग पे रखना है ये सारी चीज आपको डिसाइड करनी पड़ेगी। सब हर चीज की इंडेक्सिंग होनी चाहिए, हर चीज की लेबलिंग होनी चाहिए, सो इट इज क्विक टू फाइंड। आप जल्दी से फाइंड कर सकते हो कि कौन सी चीज कहाँ पर रखी हुई है। अगर हमारी बुक्स के अंदर इंडेक्स होगा, ठीक है, दिस इज द बेस्ट एग्जांपल। इतनी बड़ी बुक है, हमने इस पे इंडेक्स बनाया है, दिस इज द पार्ट ऑफ सेट इन ऑर्डर। हमने आपको चीजें ऑर्डर में सेट करके दी है सो दैट इट इज इजी फॉर यू टू फाइंड आउट ये कौन सी चीज कहाँ पर है। अगर इंडेक्स नहीं होता तो आप कैसे ढूंढ, राइट। देन वी हैव शाइन। शाइन मीन्स क्लीन, हर चीज क्लीन करनी है। सो देयर इज अ ट्रेडिशन इन द ट्रेडिशन इन जापान। ऑफिस आने के बाद 15 मिनट्स, ठीक है, 15 मिनट्स डेली वो लोग अपने डेस्क को क्लीन करते हैं, अपने ऑफिस को क्लीन करते हैं। सेम थिंग विद द स्टूडेंट्स, जब वो अपने स्कूल जाते हैं तो शुरू के 15 मिनट या आधा घंटा वो अपने स्कूल की खुद सफाई करते हैं। देयर आर नो जैनिटर्स, ठीक है, कोई भी वहां पे पियोन्स नहीं है साफ सफाई करने के लिए। वो बच्चों को खुद करना पड़ता है, वो ऑफिस गोइंग पीपल को, एम्प्लॉयज को खुद करना पड़ता है। तो शाइन वो सारी चीजें क्लीन रखते हैं, ठीक है। क्लेanलीनेस इन एंड ऑफ एवरीथिंग, सो क्लेanलीनेस से बाहर से नहीं, इनसाइड से भी क्लेanलीनेस। ओके। क्लेanलीनेस इज ऑल्सो implying maintenance and inspections of machineries, tools, equipments, etc. Okay. Now standardize. So I have to make standards. ठीक है, आपको स्टैंडर्ड सेट करने पड़ेंगे ताकि आप ऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्टैंडर्ड्स अप्लाई कर सको एंड एवरीवन इज फॉलोइंग दो स्टैंडर्ड्स, ताकि सबके 5S फॉलो हो रहे हैं, सबकी चीजें सॉर्ट हो रही हैं, अरेंज हो रही हैं, ठीक है, क्या बोलते हैं उसको, क्लीन हो रही हैं। देन यू हैव टू सस्टेन। आपको अब ये जो आपने स्टैंडर्ड्स बना दिए उनको सस्टेन करना पड़ेगा, उसके लिए आपको मॉनिटरिंग करनी पड़ेगी, एक्शंस लेने पड़ेंगे, ठीक है, बहुत सारी चीजें करनी। सो दिस इज द 5S। सो ये 5S टेक्निक इंपॉर्टेंट है, इसको मार्क कर लो, ठीक है। हमने इसका ओवरव्यू डिस्कस कर लिया है, राइट। देन वी हैव टोटल प्रोडक्टिव मेंटेनेंस। सो व्हाट इज टोटल प्रोडक्टिव मेंटेनेंस? देखो, टोटल प्रोडक्टिव मेंटेनेंस इज बेसिकली आप अपने पूरे प्रोडक्शन प्रोसेस को मेंटेन कर रहे हो, राइट, ताकि आपके जीरो डिफेक्ट्स हो, जीरो ब्रेकडाउन हो एंड जीरो एक्सीडेंट्स। ये आपका गोल है, जीरो, ठीक है। Your goal is zero defects, zero breakdown, zero accidents. But it is not possible to go to the zero, right? आप प्रोड्यूस करोगे जो आपका एक्चुअल है, एंड दैट इज व्हाट प्रोडक्टिव मेंटेनेंस है। आप गोल की तरफ धीरे धीरे चले जाओगे। सो इसके कुछ स्टेजेस होते हैं, इसके फेजेस होते हैं, फोर फेजेस होते हैं: प्रिपरेशन स्टेज, इंट्रोडक्शन स्टेज, इम्प्लीमेंटेशन स्टेज एंड इंस्टीट्यूशनलाइजिंग स्टेज। ठीक है, ये स्टेज आर नॉट दैट इंपॉर्टेंट। यहाँ पे इनमें जो हमें अप्लाई करनी होती है चीजें, वो कैसे करनी होती है? आपको सबसे पहले अपने गोल सेट करना है, आपका जीरो डिफेक्ट, जीरो ब्रेकडाउन, जीरो एक्सीडेंट्स। ओके। किस चीज की हेल्प से करोगे आप? 5S की चीज की हेल्प से करोगे। और टोटल प्रोडक्टिव मेंटेनेंस में क्या क्या इन्वॉल्व होगा? ऑटोनोमस मेंटेनेंस। ऑटोनोमस मेंटेनेंस मीन्स मेंटेनेंस आप खुद कर सकते हो, आपको कहीं से बहुत ज्यादा अप्रूवल्स वगैरह लेने की जरूरत नहीं है। प्लान्ड मेंटेनेंस आपके सिस्टम्स के अंदर प्लान्ड है कि हर हर वीक फ्राइडे को ये जो हमारा सिस्टम है, ये इसकी मेंटेनेंस होगी, ये जो इक्विपमेंट है, मशीनरी, इसकी मेंटेनेंस होगी। फोकस्ड इंप्रूवमेंट रहेगा कि आपको किस चीज पर फोकस है, उसी चीज पे आप इंप्रूव करोगे उस मशीनरी को या किसी प्रोडक्शन प्रोसेस को। अर्ली इक्विपमेंट मैनेजमेंट, आप इससे पहले खराबी आया, पहले ही उस चीज को मैनेज करके चल रहे हो, सो दैट
डिफेक्ट आ ही नहीं रहा मशीन के अंदर, राइट? क्वांटिटी में क्वालिटी मेंटेनेंस, since you're maintaining your machineries, you're doing total productive maintenance, you have to also take note that your quality is also maintained. Okay. Then we have education and training. You have to educate and train your employees about total productive maintenance and how it will help the production process and the organization. Total productive maintenance in the office, not only on the production floor, TPM should also be in your office workspaces. So there is timely maintenance of assets, etc. Then you have safety and environmental management so that there are zero accidents or there's zero accidents and breakdowns. Right. So this is what TPM is, and these are the 8 pillars of TPM with the 5S strategy. So this is the foundation. So if you look at this diagram, this is about this 5S line is a foundation. So these are the pillars. Okay, these are the 8 pillars, and this is the mount. And this mount is what? Zero defects, zero breakdowns, and zero accidents. Right. So you can read about those principles and their techniques in this table. You can mark it as well. Now let's jump to another topic, which is overall equipment efficiency. Overall equipment efficiency is a practical aspect in this productive maintenance. So what is overall equipment efficiency? Let's look at this word, overall equipment effectiveness. So equipment की पूरी तरीके से कितना इफेक्टिव है वो चीज हमें आइडेंटिफाई करनी है. सो दिस इज अ परसेंटेज. सो कैसे वर्क करता है देखो, आपका अवेलेबिलिटी रेशियो कितना है, आपका परफॉर्मेंस रेशियो कितना है, एंड व्हाट इज योर क्वालिटी रेशियो. व्हेन यू मल्टीप्लाई दीज थ्री यू गेट ओवरऑल इक्विपमेंट इफेक्टिवनेस. So what is availability, what is performance, and what is quality? So availability is how much time is actually set to do the job and in how much time you're actually doing the job. So how much time is available spare, right? Availability ratio is ऑपरेटिंग टाइम डिवाइडेड बाय प्लान्ड प्रोडक्शन टाइम. आपने कितना प्लान करा था ना, चल मैं आपका ऑपरेटिंग टाइम लगा कितना है. अब जब जो दोनों चीजों को इनका रेशियो निकालते हो आपको अवेलेबिलिटी रेशियो मिलता है, राइट? कि आपका एक्चुअल में अवेलेबल टाइम कितना आपने यूटिलाइज कर लिया, राइट? परफॉर्मेंस रेशियो इज व्हाट, आपका टोटल ऑपरेटिंग टाइम क्या था, आइडियल साइकिल टाइम क्या है, एक प्रोडक्ट कितने टाइम में बन जाता है, उसकी साइकिल्स कितने टाइम में कंप्लीट हो जाती हैं, एंड आपने कितने प्रोडक्ट्स बनाए. सो लेट्स से 5 मिनट्स में एक प्रोडक्ट बन जाता है ना, आपने 100 प्रोडक्ट्स बनाए. सो यू हैव टेकन 5. एक आइडियल टाइम जो है वो आपने 500 प्रोडक्ट, आपने 100 प्रोडक्ट्स बनाए और 5 मिनट्स का टाइम है, तो आपने 500 मिनट्स एक आइडियल टाइम दिया. बट आपने जो ऑपरेटिंग टाइम लिया वो लेट्स से आपने 520 मिनट्स लिया. सो जो ये रेशियो है ये बताता है कि आपने आइडल टाइम से 20 मिनट्स एक्स्ट्रा लिए हैं. क्या अगर ऑपरेटिंग टाइम 490 मिनट्स होता और आपका आइडल टाइम था 500 मिनट्स, तो आपने 10 मिनट्स कम लिए हैं. तो ये दोनों चीजें हमें कुछ ना कुछ इंडिकेट करनी है. अगर 10 मिनट्स हमने कम लिए हैं, सो वी हैव टू चेक whether the quality has been compromised, and if we have taken extra time, then why that extra time has been taken, right? You have to check all those. Yes. So we were discussing about availability ratio, right? And performance ratio. The performance ratio is idle cycle time multiplied by total count of the products you have produced divided by the operating time. Then you get performance ratio, like in how much time, how much of the operating time was your performance time, right? Then we have quality ratio. Quality ratio is आपने कितने टोटल यूनिट्स बनाए एंड उनमें से गुड यूनिट्स कितने थे, मतलब विदाउट एनी डिफेक्ट्स वाले यूनिट्स कौन से थे, आप उनको लो डिवाइडेड बाय टोटल काउंट मल्टीप्लाइड बाय 100, तो आपके पास क्वालिटी रेशियो आ जाता है, राइट? ओवरऑल इक्विपमेंट एफिशिएंसी, अगर हम इन तीनों रेशियोज को मल्टीप्लाई कर देते हैं हमारे पास ओवरऑल इक्विपमेंट एफिशिएंसी आ जाती है. OEE निकालने का एक और तरीका होता है, एक और फॉर्मूला होता है जिसमें हम गुड काउंट को लेते हैं, जो हमने गुड प्रोडक्ट्स बनाए विदाउट एनी डिफेक्ट्स उनको हम आइडल साइकिल टाइम से मल्टीप्लाई करेंगे 5 मिनट से. सो गुड काउंट लेट्स से 100, लेट्स से 80 गुड काउंट था मल्टीप्लाइड बाय 5 मिनट्स, 300 मिनट्स हो गए. डिवाइड में हमारा प्लान प्रोडक्शन टाइम क्या था, जो इनिशियल टाइम जिससे हमने अवेलेबिलिटी निकाली थी. सो वी गेट टू हैव दी व्हाट, ओवरऑल इक्विपमेंट एफिशिएंसी. सो अगर आप इस फॉर्मूले को देखोगे तो ये ऊपर वाले 3 फॉर्मूले से ही डेराइव किया हुआ है.
राइट, बिकॉज देखो, आप देखो ऑपरेटिंग टाइम कैंसिल हो जाएगा, ठीक है, टोटल काउंट कैंसिल हो जाएगा, आइडल टाइम बचेगा एंड गुड काउंट बचेगा एंड डिवाइड बाय प्लांट प्रोडक्शन टाइम. So this is also a formula by which you can calculate overall equipment efficiency. अब जब भी आप ये वाला क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो तो आपको एक कमेंट देना पड़ेगा कि लेट्स से आपका कोई एक सर्टेन परसेंटेज आ गया, लेट्स से 90% आपकी ओवरऑल इक्विपमेंट एफिशिएंसी आ गई, तो आप उस पर क्या कमेंट करोगे. सो देखो, एक क्या बोलते हैं उसको, एक सिस्टम है जिसके थ्रू ओईई वर्क करती है, ठीक है. अब देखो, ओईई में ना वर्ल्ड क्लास परफॉर्मेंस एक जो है डिफाइन किया हुआ है कि अगर आपका ओवरऑल इक्विपमेंट एफिशिएंसी 85% या उससे ज्यादा आता है तो फिर आप वर्ल्ड क्लास परफॉर्मेंस में हो, ठीक है. ये इंट्रोड्यूस करा था नाकाजीमा ने, ये भी जापानीज थे. नाकाजीमा ने इंट्रोड्यूस करा था, ठीक है. तो यानी कि अगर आप उस 85% को ब्रेक करो तो आप कहीं ना कहीं आते हो कि अवेलेबिलिटी रेशियो अगर आपका 90% से ज्यादा है, परफॉर्मेंस रेशियो अगर आपका 95% से ज्यादा है और क्वालिटी रेशियो आपका 99% से ज्यादा है, which means, ठीक है, तो मतलब आप कहीं ना कहीं वर्ल्ड क्लास परफॉर्मेंस में हो, तो आपकी ओवरऑल इक्विपमेंट एफिशिएंसी 85% आ जाती है, राइट. तो यही चीज है, इसके बेसिस पर आपको कमेंट करना होगा ओवरऑल इक्विपमेंट एफिशिएंसी के बारे में, ठीक है. यहाँ पर हमारा ओई खत्म हो जाता है. उसके बाद सेल्यूलर मैन्युफैक्चरिंग वगैरह ये सारी चीजें हैं, हमने ऊपर डिस्कस भी कर लिया था. इसको आप एक बार रीड कर लोगे तो आपका काम हो जाएगा. सेल्यूलर मैन्युफैक्चरिंग में एक क्वेश्चन है एंड आई डोंट थिंक कि वो आईबीएस के अंदर वो क्वेश्चन पूछने वाले हैं, ठीक है. क्योंकि उस क्वेश्चन को करने के लिए ना हमें अलग से टाइम देना पड़ेगा और अलग से उसका कॉन्सेप्ट समझना पड़ेगा, और वो बहुत ही कॉम्प्लेक्स हो जाएगा इस टाइम पे आपके लिए करना, ठीक है. नाउ वी हैव सिक्स सिग्मा. सिक्स सिग्मा मैंने आपको बताया था, किसी भी चीज को करने के लिए आप एक सर्टेन पॉइंट लगाते हो. सिक्स सिग्मा को हम और डिटेल में देखते हैं. देखो, सिक्स सिग्मा का मतलब क्या होता है. सिक्स सिग्मा भी एक इंजीनियर ने इंट्रोड्यूस करा था जो मोटोरोला में वर्क करते थे. उन्होंने बोला था कि हम कंटिन्यूस एफर्ट्स करेंगे, हर रोज कंटिन्यूस एफर्ट्स करेंगे और हर प्रोसेस में एफर्ट्स करेंगे ताकि वो प्रोसेस इंप्रूव हो, एंड इन द एंड हम देखेंगे कि हमारी प्रोसेस ओवरऑल इंप्रूव कर चुकी है. सिक्स सिग्मा. तो उन्होंने एक सिक्स सिग्मा का टेबल दिया, राइट. उन्होंने बोला सिक्स सिग्मा इज 3.4 डिफेक्ट्स पर मिलियन अपॉर्चुनिटीज. मतलब वो कहना चाहे कि आप 1 मिलियन अगर आप प्रोडक्ट्स बना रहे हो तो उसमें से सिर्फ आपके 3.4 ही डिफेक्ट्स होने चाहिए. 3.4% ही डिफेक्ट्स होने चाहिए, विच मीन्स आपका 99.99966% आप करेक्ट होने चाहिए अपने 100 मिलियन प्रोडक्ट्स के अंदर, पर मिलियन, सॉरी 1 मिलियन अपॉर्चुनिटीज के अंदर. तो सिक्स सिग्मा का यही डिफाइंड परसेंटेज है. इसके बेसिस पर उन्होंने एक पैरामीटर डिजाइन करा, 1 सिग्मा, 2 सिग्मा, 3 सिग्मा, 4 सिग्मा, 5 सिग्मा, 6 सिग्मा. तो 1 सिग्मा में आप इतने डिफेक्ट्स कर सकते हो, सेकेंड सिग्मा में आप इतने, थर्ड में इतने, फोर्थ में इतने, फिफ्थ में इतने, एंड सिक्स सिग्मा में आप सिर्फ 3.4 डिफेक्ट्स कर सकते हो. सो सिक्स सिग्मा एक लेवल है जो हमें अचीव करना है, राइट. या परसेंटेजेस आप देख सकते हो. क्वालिटी प्रॉफिटेबिलिटी, अगर आप एक ही सिग्मा फिर हो तो आप लॉस कर रहे हो, आप नॉन कॉम्पिटेटिव हो, फिर आप एवरेज इंडस्ट्रीज की तरह अबव एवरेज हो, बिलो मैक्सिमम आप नियर परफेक्शन पहुंच जाओगे, ठीक है. तो इम्प्लीमेंटेशन इसको करते कैसे, तो इसके दो टेक्निक्स होते हैं, डीएमएआईसी एंड डीएमएडीबी. व्हाट इज डीएमएआईसी? डिफाइन, मेजर, एनालाइज, इंप्रूव एंड कंट्रोल. बस ये नीचे वाले दो में डिफरेंस आ जाता है हमारे डीएमएडीबी में, ठीक है. डिजाइन, मेजर एंड एनालाइज दोनों में सेम है, बट डीबी में वहां पर आपको क्या करना पड़ेगा. डीएमएआईसी में तो हमने करा इम्प्लीमेंट एंड कंट्रोल, बट डीएमएडीबी में क्या, डिजाइन करना पड़ेगा और वेरीफाई करना पड़ेगा. आपको नए प्रोसेसेस बनाने पड़ेंगे, डिजाइन करने पड़ेंगे. तो डीएमए आईसी और डीएमए डीबी ये है क्या. पहले तो देखो, सिक्स सिग्मा हम किसी भी प्रोसेस पे लगाते हैं. अब वो प्रोसेस कभी वर्क कर रही होती है, कभी वो प्रोसेस वर्क नहीं कर सकती. अगर उस प्रोसेस में हमें कोई दिक्कत लगती है, राइट राइट, हम उससे अचीवेबल जो मतलब हमें अचीव करना है वो चीजें नहीं लेके आ पा रहे, तो हम उसको उसको चेंज करने का सोच रहे हैं. तो हम दो तरीके देखते हैं, आइदर वी हैव टू चेंज दैट प्रोसेस और वी हैव टू मेक चेंजेस टू द प्रोसेस. मतलब या तो हमें ओवरऑल प्रोसेस को ही चेंज करना है या प्रोसेस के अंदर चेंजेस करना है. अकॉर्डिंगली वी चूज डीएमएआईसी एंड डीएमएडीवी. तो डीएमएआईसी क्या कहता है
देखो, पहले तो अपने प्रॉब्लम को डिफाइन करो कि आपकी प्रॉब्लम क्या है। देन आप मेजर करो उस प्रॉब्लम को कि हमारी प्रॉब्लम क्या है, ठीक है, और हम करंट में क्या कर रहे हैं, क्या हमारी प्रोसेस है, क्या हमारा हमारे अचीवमेंट्स है, और एक्चुअल में करना क्या है हमें, हमारी गोल्स क्या है। आप उन चीजों को मेजर करो। फिर जब आप एक बार मेजर कर लोगे, अब आप फिर एनालाइज करो कि जो प्रॉब्लम का रूट कॉज है ये कहाँ से आ रहा है। इसमें हम क्या चेंज करें कि ये रूट कॉज, या तो ये रूट कॉज खत्म हो जाए, या इस प्रॉब्लम को बहुत हद तक मिटिगेट कर सके। ये सारी चीजें आप देखो, डिफेक्ट्स देखो कहाँ पे आ रहे हैं, ठीक है, वेरिएशन क्यों आ रहा है हमारे क्वालिटी के अंदर या किसी भी चीज के अंदर। डिफाइन करो, मेजर करो, एनालाइज करो, ये तीन स्टेप्स तो आपको करने ही है, ठीक है। तभी आप चूज कर सकते हो कि आपको प्रोसेस ओवरऑल चेंज करनी है, पूरी चेंज करनी है, या फिर प्रोसेस के अंदर थोड़े से चेंजेस करना है, प्रोसेस को इम्प्रूव करना है। अब जो अगर आपको इम्प्रूव करना है तो फिर आप देखो, इम्प्रूव करो कि क्या चीजें इसमें एलिमिनेट कर सकते हैं, रूट कॉज को एलिमिनेट करने के लिए क्या चीजें एक्स्ट्रा कर सकते हैं, कुछ चीजें हटा सकते हैं प्रोसेस के अंदर से, कुछ नॉन वैल्यू एडिंग एक्टिविटीज होंगी उनको हटा सकते हैं क्या, ये सारी चीजें आप देखोगे इम्प्रूव करने के लिए। एंड देन फिर आप उस पर कंट्रोल्स लगाओगे कि एक्चुअल में जो हमने इम्प्रूवमेंट के टाइम पे जो जो चीजें बताई थी, क्या वो एक्चुअल में हो रही हैं, क्या वो स्टैंडर्ड्स मेंटेन हो रहे हैं। तो फिर आपका डीएमएआईसी वर्क करना है। और वही बात रही डीएमएडीबी की, अब डीएमए तो तुम दोनों में ही करोगे, डिफाइन मेजर एनालाइज तो आपको करना ही है। बट डीएमएडीबी के अंदर आपको नए प्रोसेसेस डिजाइन भी करने पड़ेंगे, क्योंकि आप कह रहे हो कि आपका पिछला वाला प्रोसेस अच्छा नहीं है, वो वर्क नहीं करेगा, तो आपको न्यू प्रोसेस में आना है, आपको न्यू प्रोसेस डिजाइन करना पड़ेगा ताकि जो इश्यूज थे, जो रूट कॉज थे, वो हो ही ना इसके अंदर। तो जो भी इश्यूज थे वो आप सॉल्व कर लो, जो भी प्रॉब्लम्स थे सॉल्व कर लो वाया फीडबैक्स, जो भी आपको आपके वर्कर्स, ठीक है, आपके एम्प्लॉय वगैरह जो भी आपको देंगे, जो एक्चुअल में ग्राउंड लेवल पर वर्क कर रहे हैं, वो डिजाइन करो। एंड देन आप फिर उस जो डिजाइन किया है ना उसको वेरीफाई भी कर लो, क्या वो जो प्रोसेस आपने डिजाइन करी है वो आपके टारगेट्स को मीट करेगी, वेदर दैट प्रोसेस विल मीट योर टारगेट्स, वो आपका आप वेरीफाई कर सकते हो। सो दिस इज डीएमएआईसी एंड डीएमएडीवी। सिक्स सिग्मा में इतनी ही ध्यान रखने वाली चीजें हैं। बाकी इसके नीचे दे हैव गिवन देयर सिमिलैरिटीज, डिफरेंसेस, और थोड़ा सा और डिटेल में दिया हुआ है इन प्रोसेस के बारे में, आप बस इसको मार्क कर लो, एग्जाम में अगर आता है तो क्लिक करो, राइट। So this is DMAIC and DMADV. We have completed the Six Sigma. You can also mark these limitations of Six Sigma, similarities between DMADV, DMAIC, right? Now this process innovation and BPR. So basically, BPR is what? Process innovation and BPR. On a broader picture, they both look the same. But when you go deep inside them, you will know that they are two different things. Process innovation is something you are actually stepping into something which is totally new. You have innovated the process and all. ऐसा पहले कभी हुआ ही नहीं था। एंड बिजनेस प्रोसेस इंजीनियरिंग इज बेसिकली जो आपकी प्रोसेस ऑलरेडी थी, आपने उसमें चेंजेस करे हैं और उसको री इंजीनियर करके थोड़ा डिफरेंट वे में वो प्रोसेस थोड़ी इफेक्टिव है, थोड़ा कम टाइम लेती है, कॉस्ट इफेक्टिव है, ये सारी चीजें एफिशिएंसी बढ़ा रही है वो आपकी, वो आप इंजीनियर कर रहे हो। तो ये डिफरेंस है, ठीक है। इस डिफरेंस को हम डिटेल में अभी नहीं करेंगे बिकॉज इट्स नॉट दैट इम्पोर्टेंट। बट हाँ, अगर आपका मन है आप रीड कर सकते हो, इस चीज को मार्क कर लो बस अपने बुक के अंदर। अगर कभी आता है बीपीआर या पीआई के बीच में कुछ डिफरेंस बताने का, तो आप यहाँ से देखकर लिख सकते हो, ठीक है। यहाँ पर उन्होंने एक अच्छा सा एग्जाम्पल भी दिया है कुछ बाइक्स वगैरह को लेके, आप इसको बस मार्क कर लो, ठीक है। ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बस एक बार मार्क कर लो, ठीक है। सो नाउ अब हमने चैप्टर 3 कंप्लीट कर लिया है। अब ऑन द वे फॉरवर्ड हमारे पास जो चैप्टर्स बचते हैं जो कि एक्चुअल में इम्पोर्टेंट होंगे फॉर योर एसए, मतलब आईबीएस के लिए जो इम्पोर्टेंट आ रहे हैं, तो भी हमने मेजरली 3 चैप्टर्स कवर करें एंड दे आर मोर देन सफिशिएंट। उसके बाद अभी जो हमें करना है ना, जो आपके लिए एक इम्पोर्टेंट चैप्टर बन सकता है, ठीक है। ये हमने चैप्टर 5 भी कंप्लीट कर लिया था, राइट। हमारा चैप्टर 5 हो गया था, चैप्टर 6 भी हमने कर लिया था, रिलेवेंट कॉस्टिंग एक्सेट्रा वाला। चैप्टर 7, ओके, डीपीपी वगैरह ये अभी हमने नहीं करा, मैन्युफैक्चरिंग साइकिल एफिशिएंसी, राइट, पैरेटो एनालिसिस, दिस इज ओके, ओके, दिस चैप्टर इज ओके, ओके।
Okay, so in this chapter, I have to discuss some new topics. So next, we are going to take up chapter number 8, Introduction to Strategic Performance Management, because there are some new concepts, H-score model, Beaver's univariate model, right? We'll discuss chapter number 8 and mm, chapter number 10, chapter number 8 and chapter number 10. Right, chapter number 8, chapter number 10. Yes, chapter number 8 and chapter number 10. And from chapter number 30, we'll discuss McDonaldization. McDonaldization, right. So chapter number 8, chapter number 10, and chapter number 13, McDonaldization. We'll discuss these three because other chapters are not that important for your IBS paper, as I have, as far as I have analyzed the previous, question papers and RTPs. These chapters are more important. Standard costing is somewhat important, but this topic requires practice. And you have practiced standard costing questions, then you can easily do them. And if even if you have basic knowledge about them, you have the formulas around you, you can easily attempt those questions in your IBS paper if they come, because you have also studied standard costing in your CA intermediate. So it's not that difficult. Only the only thing here is the variances are bifurcated into two parts: planning variances and operating variances. So that you can easily handle because you will have the formulas there over there. आप फॉर्मूलाज को लेकर इजीली सॉल्व कर सकते हो कि ठीक है प्लानिंग वेरिएंस निकालना है, वो फॉर्मूलाज आर सेम, ठीक है, वो बस उन चीजों को निकालने का थोड़ा सा तरीका डिफरेंट हो जाता है। वो चीज सेम है, जो आपका बेस है ना कि किस तरीके से आप स्टैंडर्ड में से एक्चुअल को माइनस करोगे, कॉस्ट से मल्टीप्लाई करोगे, दैट इज द सेम। बस उसमें एक्चुअल स्टैंडर्ड को निकालने का थोड़ा सा तरीका डिफरेंट हो जाता है, विच इज नॉट दैट डिफिकल्ट। ठीक है, स्टैंडर्ड कॉस्टिंग सबसे इजी टॉपिक है इसको एस सी एन पी एम में बात कर रहा हूँ। ठीक है, सो दिस इज ऑल। हम सिर्फ चैप्टर नंबर 8, 10 और 13 में मैकडोनल्डाइजेशन एंड लर्निंग टू डिस्कस करेंगे, एंड दैट विल बी इट। बिकॉज मैंने जो प्राइसिंग वाला पार्ट था वो ऑलरेडी डिस्कस कर लिया, उसके क्वेश्चन आप एक बार देख लें, क्योंकि वहां पे वो इंपॉर्टेंट बन जाता है एक पॉइंट पे, बिकॉज ICNS को एमटीपी में भी पूछा हुआ है। सो दिस इज ऑल फॉर चैप्टर नंबर 3। ऑल द बेस्ट।